Hello, it's me. Hey guys, this is Aditya, and I welcome you back to another episode of the Funny Podcast. Very bizarre, very real. And once again, I'd like to thank the India Film Project and Anchor by Spotify for their amazing IFP Podcast Lab, making this particular experience really great. So, coming to today's episode focuses on something very unique because this is one of the times when I did something and I did it for the first time. So the clarity I had about the consequences was not that certain. They were not very much determined, and probably the reason why it's one of the stupidest things that I've ever done. So without any further ado, let's start off today's episode of my bizarre life. Now, when we talk about first times, you think about all the good things like first time you drove a car, first time you kissed someone, first time you had sex. These things they matter a lot, and you remember your first times. I remember all my first worsts. The first time I've done something stupid, the first time something bad happened to me, I always remember that. And the reason why I remember it very clearly is because our brain is conditioned in such a way that it remembers bad memories better. So it's easier for me to tell you about these bizarre incidents because I am at the receiving end of the bad things in those events. So this happened when I was around 6 or 7 years old. Now we all know that we have a I mean, if you are from a normal Indian household, which is very abnormal in general, you would know that you are more attached to your maternal family as compared to your paternal family. If not, I'm sorry. So, your maternal side cousins are the ones you are close to. You, your concept of friendship, your concept of being friends, being a secret keeper for each other, that establishes at that level. It starts off there, and that is something that happened with me as well. Like मेरे मौसा मौसी के लड़के, मेरे मामा का लड़का, मेरी मौसी की बेटी, यही सब होता है, मतलब जो प्रॉबली मुझे एट दैट एज दोस्त लगते थे. सो आई यूज टू बी वेरी क्लोज टू देम, एंड यूज टू बी इसलिए क्योंकि अब मैं किसी से भी बात नहीं करता, तो इट्स नॉट लाइक कि मैं उनको अलग से फक ऑफ बोला है. इन जनरल मैं लोगों से बात तो करता हूँ नहीं. सो नाउ द थिंग इज, जब भी अब मैं पैदा भुवनेश्वर में हुआ, बट कुछ ही दिनों में मैं चला गया कैलकटा, फिर मैं चला गया असम, एंड then I was in Bhubaneswar for a very long time, and most of my relatives were in Bhubaneswar. Like I lived in Bhubaneswar for approximately 5-6 years. So उस एज में, when I was 6 years 7 years old, every occasion, every weekend we used to all gather together कि हाँ किसी एक तो मतलब कुछ नहीं हुआ तो नानी घर जाके चिल करेंगे, और चिल मतलब बकचोदी करेंगे. सो दिस वॉज अ वेरी कॉमन थिंग. नाउ हर बार का यही होता है. हर बार यू गो टू योर नानीज हाउस, एंड वहाँ पे तुम्हारा अलग ट्रीटमेंट होता है. तुम घर पे उसी दिन सुबह पिट के नानी के घर गए होगे. नानी के घर पहुँच के एवरीथिंग इज अमेजिंग. तुम्हें खाना मिलेगा. मंगलवार को चिकन खिलाते थे. क्यों? क्योंकि बच्चा है. सो वी कजिन्स न्यू कि हमारे लिए सेफ हेवन वही है. इट्स लाइक व्हेन दाऊद फ्लीड टू दुबई. हमारा दुबई वही था कि हम वहाँ जाएंगे
ट्यूसडे के दिन जाके चिकन खा सकते हैं, बट हमेशा ट्यूसडे नहीं होता, तो कभी कभी मतलब वीकेंड्स पे ही मोस्टली हम जाते थे, तो सारे आ जाते थे, और एक दो लोग थे जो ट्रांसफरेबल जॉब्स की वजह से अलग अलग जगह में रहते थे। सो ऐसे ही एक बार की बात है कि माई कजिन्स दे ऑल केम टू माई नानीज प्लेस। मी एंड माई सिस्टर वी कुडंट, बिकॉज हमारी कार गई थी सर्विसिंग के लिए, एंड द ड्राइवर हैड नॉट ब्रॉड द कार बैक फ्रॉम द प्लेस। तो मैं एज अ 6 ईयर ओल्ड मैंने ज़िद किया कि मेरे को जाना है। ऑलमोस्ट 2-3 घंटे तक मैंने ज़िद की थी, तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि भाई गाड़ी नहीं है तो कैसे जाएगा, कौन लेके जाएगा, नो बडी इज़ फ्री। सो ऑब्वियसली मैं तब भी उतना ही चूतिया था, तो मैंने बोल दिया कि नहीं मुझे पता नहीं है, मुझे बस जाना है, बिकॉज आई गॉट अ कॉल कि हम लोग तो यहाँ पे है, फ्रॉम वन ऑफ माई कजिन्स, एंड फोमो हो गया। अब फोमो में इंसान शायद कंट्रोल कर लेता, लेकिन मैं चूतिया था तो मैंने कंट्रोल नहीं किया। आई वॉज वेरी एंग्री, आई वॉज बिकमिंग अ लिटिल डिस्ट्रक्टिव, एंड इफ़ इन केस ये काम मतलब ये ट्रिक चल जाए तो इट्स अ गुड थिंग, अदरवाइज नो हार्म नो फाउल। सो बहुत जिद किया, एंड इट वॉज अराउंड 5:36 when my mom, my chachi, and I mean both my chachis and my mom, they were making dinner, they were prepping up for dinner and all. तो इतने में I don't know what happened. I was like, if you guys can't take me to Nani's place, मैं खुद से चले जाऊँगा. And my mom got pissed. And just an information, you don't want my mom to get pissed, because I mean इस चीज़ में छोटी चीज़ में छोटा, if you piss her off for a trivial thing, तो she'll be giving you an extreme response in trivial range. If you piss her off in a very bad reason, for a very bad reason, then she'll be just she'll fuck you off. And मैंने भी कर दिया जिद में चूतिया हरकत. I said if you won't take me, I'll go on my own. My mom said, okay, go, just fuck off. She was like, go. And I don't know what happened. तो मैं समझ नहीं पाया कि यार अब मैं क्या करूं. दिस वॉज माई लास्ट ट्रम्प कार्ड कि शायद मान जाए. अब मैं तो चूतिया था. सो आई wanted to be the last one to draw a card. मैंने कहा ठीक है मैं अकेले ही चले जाऊंगा. सो दे थॉट कि हाँ चूतिया बना रहा है. सो आई was wearing shorts, I was wearing a t-shirt, and I went to the door, जूते पहने और मैं निकल गया पैदल पैदल. Now one thing that I remember very clearly is that I'm very good with directions from a very early stage. तो मुझे रास्ता तो पता था कि यहाँ से सीधा जाना है, वहाँ से टेढ़ा जाना है, यही सब वो सब. एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग. तो मेरे घर में और मामा के घर के बीच में 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है. लाइक प्रॉपर 6 किलोमीटर थ्रू अ वेरी स्ट्रेट रोड, बट दैट स्ट्रेट रोड इज़ अ मेन रोड. लाइक शाम के 5-6 बजे लोग ऑफिस से घर जाते हैं, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक देयर. सो आई स्टार्टेड वॉकिंग ऑफ. मेरा घर एक एरिया में है जहाँ पे it was back then a very underdeveloped area. Now all I knew was this is the route I have to take for reaching my nani's house. So it's a straight road and है 6 किलोमीटर. तो चलते गया मैं
स्ट्रेट रोड, देयर इज़ अ कनाल, कनाल क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद एक मार्केट आता है राइट साइड पे, तो मार्केट में भीड़ थी उस वक्त, शाम का टाइम था। भी क्रॉस किया। 7 साल का मैं, चलते 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 जो पहला मेन टर्न था दैट एक्चुअली वाज अ मेन रोड जहाँ पे ट्रैफिक हो सकता था, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 1 किलोमीटर आई हैव कवर्ड। तो 1 किलोमीटर कवर किया, फिर मैं लेफ्ट साइड पे टर्न लेते साइड बाय साइड चलते रहा हूँ अलॉन्ग द रोड, बट आई हैड टू क्रॉस अ ट्राई सेक्शन ऑफ रोड्स। ट्राई सेक्शन का मतलब 3 तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं और ट्रैफिक है, क्योंकि वही रोड अगर मैं सीधा जाता तो वो भुवनेश्वर से पुरी का रोड कनेक्ट करता है, सो वहाँ पे तो भीड़ होगी। दूसरा, भुवनेश्वर मेन सिटी से मेरा लोकेलिटी को कनेक्ट करता है, वहाँ पे भी भीड़ होगी। और तीसरा, भुवनेश्वर को कटक से कनेक्ट करता है, तो भीड़ है। 3 सिटीज़ आपस में कनेक्टेड होती हैं और वहाँ पे उनका कंबाइंड ट्रैफिक शाम के 6 बजे होता है। नाउ आई स्टूड देयर, I stood there for a couple of seconds. Those couple of seconds became a couple of minutes. और इन कुछ मिनटों में मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गया कि यार ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि मैं कुछ 4 फुट कुछ इंच का था और मेरी गांड फट गई। अब मैं और चूतिया इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरी गांड फट गई और मैं यहाँ तक आ गया। चूतिया इसलिए हूँ क्योंकि इस पॉइंट पे मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि आई शुड गो बैक होम। I'm still trying to figure out कि how will I cross the road. And I did something very amusingly stupid here because मैंने समझ लिया कि यार रास्ता तो क्रॉस होने नहीं वाला, बहुत ट्रैफिक है, देयर isn't going to be one moment, समझ में भी नहीं आ रहा क्या करना है। लेकिन अब इज्जत पे बात आ गई है तो घर तो नहीं जा सकते, अब घर भी नहीं जा सकते तो क्या करें। तो गाड़ियां तो जा रही थी, फिर रुकती हैं, लेकिन बाकी तरफ से गाड़ियां आ जाती है, तो मेरी तो गांड फट रही थी, तो मैं क्रॉस नहीं कर रहा था। तो आई वॉज देयर स्टैंडिंग फॉर लाइक 5-10 मिनट्स। अब टाइम हो गया होगा, मतलब ऑलमोस्ट 6, एंड बीइंग एन ईस्टर्न स्टेट अंधेरा जल्दी हो जाता है। सो बहुत ही मज़े के साथ मैं वहाँ पे खड़ा था एंड आई वॉज थिंकिंग कि एक हाथ में ईमान है, एक हाथ में कुछ भी नहीं, मैन। इट वॉज जस्ट सो स्टूपिड टॉकिंग अबाउट इट। सो आई हैड टू गो बैक होम, बट आई चोज टू बी वाइजर उस टाइम पे। नाउ आई नो इट्स डम। अचानक मेरे सामने, मैं जिस रोड से आ रहा था वो रोड पे ट्रैफिक को रोका गया, इट वाज अ रेड लाइट। सो तब मैंने देखा मेरे जस्ट सामने आके रुका एक साइकिल रिक्शा। मैंने उन्हें बोला वहां तक चलोगे? ही वाज लाइक किसके साथ हो? मैं बोला अकेले हूँ, एक सवारी, चलोगे? ही इज लाइक पैसे रखे हैं, बिकॉज ही सॉ मी इन माई शॉर्ट्स एंड माई शॉर्ट्स डिड नॉट हैव पॉकेट्स। मैं बोला वो मेरे मामा का घर है, वहां चलो, पैसे मिल जाएंगे। नाउ दिस पर्सन, आउट ऑफ कंसर्न कि यार ये लौंडा यहाँ पे अकेले खड़ा है, एंड ही फेल्ट अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल, ही सेड ओके, और मैं चढ़ गया। नाउ दिस गाय टुक मी 5 किलोमीटर्स इन अ साइकिल रिक्शा। मैंने उनको पूरे रास्ते गप्पे मारे, रास्ता बताया, एंड आई रीच्ड माई मामा's प्लेस, माई नानी घर। एंड आई रीच देयर, आई रैंग द बेल, माई मामा केम आउट एंड ही इज लाइक वेयर इज द ड्राइवर? मैं बोला ड्राइवर नहीं, मैं रिक्शे में आया हूँ, इनको पैसा दे दो। एंड मैं वहाँ पे बहुत ही नॉर्मल खड़ा हूँ, रिक्शा वाला इज कम्प्लीटली ऑकवर्ड राइट नाउ कि पता नहीं इसके मामा क्या सोच रहे होंगे, बिकॉज मैं छोटा सा था बहनचोद।
तो रिक्शा वाले को भी पता नहीं क्या बोलना है. ही वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर. ही जस्ट सेड इतने रुपए एंड क्वाइट. माय मामा इज स्टन्ड. ही इज शॉक्ड टू द कोर. और मेरे मामा ने उसको पैसे देने से पहले कम से कम उसको 2 मिनट देखा होगा. फिर वो मुड़े, उन्होंने मुझे 2 मिनट देखा. देन ही पेड द रिक्शा वाला. आई डोंट नो उनके बीच में बात क्या हुई थी, बट इट वॉज प्रॉबली अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड, बिकॉज उस बंदे ने मुझे किडनैप नहीं किया. मेरे घर सीधा फ़ोन किया. मेरी मम्मी ने फ़ोन उठाया. उन्होंने पूछा आदित्य कहाँ है. मेरी मम्मी ने बोला पता नहीं, बोल के कहीं निकला हुआ है, घर पे ही घूम रहा होगा कहीं. बिकॉज वी हैड अ वेरी ह्यूज हाउस, तो घर पे ही कहीं घूम रहा होगा वॉज अ पॉसिबिलिटी. लाइक वो यहाँ पे है. माई मॉम ड्रॉप्ड द फोन एंड किसी को समझ में नहीं आया. कुछ 1 घंटे बाद शायद मेरा ड्राइवर गाड़ी लेके वापस आया था. तो माई मॉम रश्ड टू माई मामा's प्लेस एंड जो मुझे डांट पड़ी, क्योंकि वो मेरा दुबई था तो मुझे सिर्फ डांट पड़ सकती थी. वापस आने के बाद जो मेरी धुनाई हुई कि चूतिया है क्या तू, तेरे को पता नहीं क्या कि क्या होता है, किडनैप हो जाता तो वो इंसान अच्छा था करके तेरे को बचा दिया, वरना तो तेरे को ले जाता, तू मिलता नहीं, तेरे टुकड़े भी नहीं मिलते. एंड एवरीथिंग ऑन द प्ले बुक, सब कुछ बोल दिया मुझे. और ये चीज़ जो मैंने चूतियापा किया, ये मुझे रियलाइज कई सालों तक नहीं हुआ था. आई थॉट इट वॉज अ वेरी नॉर्मल थिंग, बिकॉज यार लोग घूमते हैं रिक्शा वगैरह में. बट मुझे ये नहीं पता था कि 6-7 साल के बच्चे अकेले नहीं जाते. एंड उस चक्कर में मैंने इतना चुतियापा कर दिया. एंड दिस इज वन थिंग, आई मीन दिस रिक्शा स्टोरी इज समथिंग जो मेरे घर वाले मुझे एम्बैरस करने के लिए अपने सारे दोस्तों को सुनाते हैं. एवरी सिंगल फ्रेंड ऑफ दिस दे नो कि हाँ ये एक बार रिक्शा में बैठ के 6 साल की उम्र में 5-6 किलोमीटर दूर चला गया था और रिक्शा वाले ने इसको किडनैप भी नहीं किया. सो आई लॉस्ट माई द बैटल as well as the war, and the rickshaw wala gained a lot of respect from my parents for safely sending me to this person. अगर तब मोबाइल का इतना ज़माना होता तो शायद नंबर भी ले लेते. आज के डेट में मेरे मम्मी पापा हर साल उसी दिन उसको मैसेज भेजते थैंक यू सो मच, बट दैट्स नॉट हैपनिंग. So this is probably one of the most stupidest things I've done. I've done many other stupid things. Can't name them for the fact that they can sue me. But yeah, that was it for today. I hope you found it bizarre, because that is the purpose. Once again, this particular podcast is being created with support from India Film Project and anchored by Spotify's IFP Podcast Lab. Do check out the entire cohort. We are really working hard into putting up episodes every week. So thank you so much, and I'll see you next time. Bye bye.